Good morning, students. After studying about semiconductors, let us move on to the uses of semiconductors. The first and foremost use of semiconductor is to make or to fabricate the p-n junction diode. So the fabrication of p-n junction diode is one of the main use of semiconductors. What is p-n junction diode? P-n junction diode is a combination of p-type and n-type semiconductor which is formed by diffusing the trivalent and pentavalent impurity on a silicon wafer or a germanium wafer 50-50. So when a crystal of pure semiconductor, it may be silicon or may be germanium, is doped with a trivalent and the pentavalent impurity half, then one part of it becomes p-type and other part becomes n-type. This is called p-n junction diode. Junction is the physical boundary between the p-type and n-type semiconductor. One more important thing, two separate p-type and n-type semiconductors cannot be pressed together to make a p-n junction diode, because even the hardest pressing cannot overcome the intermolecular gap, and a gap remains among the molecule. That's why it cannot behave like a p-n junction diode. The arrangement of p-n junction diode is shown in the figure. Let us see. Here I have taken a silicon wafer or a germanium wafer. 50% of it I have fused with the trivalent impurity, so the part has become like p-type. Other 50% which is remained, I fused with pentavalent impurity, and this part behaves like n-type semiconductor. In the diagram I am just showing the cores of impurity, I am not showing the tetravalent core. So here it is the pentavalent core which is called donor core, accompanied by a negatively charged electron. Here I am showing a trivalent core which is called acceptor core along with a positively charged hole. So this is the arrangement of p-n junction diode. This boundary between the p-type and n-type is called junction. Now formation of p-n junction diode. The formation of p-n junction diode is defined as a dual process of diffusion and drifting. There are the two important processes in this. One is diffusion and other is drifting. So see what happens. Formation of p-n junction diode. What happens just after the diffusion takes place? जैसे हम डिफ्यूजन खत्म करते हैं, जैसे डिफ्यूजन कंप्लीट होता है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं. पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज है होल्स, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स. These electrons are majority in the 50% region, but here it is the minority. Similarly, the hole from P region try to balance their concentration by spreading themselves onto the entire wafer. Same happens with the electrons. So these electrons from N region crosses the junction and diffuse themselves with the holes. This is called electron hole recombination. These electrons are diffused with the holes, so diffusion takes place around the junction, and as a result of this diffusion, here the mobile charge goes off. The negative charge, which was movable charge, that is the mobile charge, that is goes off. Similarly, from here the hole, which was positive charge, also goes off. So here creates a boundary of charge. This we call space charge. This positive space charge on the N side and negative space charge on P side creates a barrier for the further charge coming this side. This negative oppose this electron. तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर आने वाला था इसको ये रोकता है. सिमिलरली ये पॉजिटिव इस होल को इधर आने से रोकता है. So there develops a charge boundary around the junction. This region which has no mobile charge is called depletion region. So what is depletion region? The region around the p-n junction which have no mobile charge is called depletion region or depletion layer.
द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन। जितनी विड्थ ज्यादा होगी उसका उतना ही जंक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक फिक्सियस बैटरी की शेप ले लेता है। नेगेटिव चार्ज को मैं लो पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज वाली साइड को मैं हाई पोटेंशियल मानता हूं। तो यहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की दीवार जो जंक्शन के अराउंड खड़ी हो गई है, ये दीवार यहां पर एक फिक्सियस बैटरी की फॉर्म में काम करती है। एंड दिस फिक्सियस बैटरी डेवलप्स ए वोल्टेज वी बी कॉल्ड बैरियर वोल्टेज एंड a negative field develops around this which stops the further diffusion of charge। चार्ज का फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरियर फील्ड। ये बैरियर फील्ड डिनोट होता है ई सफिक्स बी से। तो यहां से मेरे पास आता है पोटेंशियल बैरियर। तो यहां पर लिखा है ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्ज ऑन एन साइड एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज ऑन पी साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप अक्रॉस। यहां पर एन साइड पॉजिटिव स्पेस चार्ज बना है, पी साइड नेगेटिव स्पेस चार्ज बना है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन और होल के फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। दैट्स व्हाई दिस फील्ड इज कॉल्ड बैरियर फील्ड। अब क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्केलर वर्जन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं कह सकता हूं दिस बैरियर एक्ट्स एज ए फिक्सियस बैटरी द वोल्टेज डेवलप्स अराउंड द जंक्शन। यानी इस बैटरी की जो वोल्टेज है जो जंक्शन के अराउंड डेवलप हो गई दैट वी कॉल पोटेंशियल बैरियर विच इज शोन बाय वीबी। तो यहां पर इसका जो एक्यूरेट डायग्राम है वो ये है। दिस रीजन विच इज हैविंग नो मोबाइल चार्ज इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। The fixious battery that develops around the junction because of the positive and negative space charge around the junction is called barrier potential, and the field that develops around this region is called barrier field. One important thing is that question comes, can we measure the voltage of this fixious battery using a voltmeter? No. Answer is no. Because a voltmeter measures only the moving charge। जब चार्ज का मूवमेंट होता है उससे करंट फ्लो करता है तभी वो अपनी रीडिंग देता है। अगर चार्ज नहीं मूव कर रहा तो वोल्टमीटर रीडिंग नहीं देगा। बट हियर देयर इज नो मोबाइल चार्ज, दीज कोर्स आर इमूवेबल, ये मूव नहीं करती, ये फिक्स है। सो दिस वोल्टेज कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। अब अगर मैं जंक्शन के अराउंड देखूं तो इधर पॉजिटिव चार्ज की एक दीवार खड़ी हो गई थी, यानी अगर मैं देखूं तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहां तक उठ गया और अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव चार्ज यहां तक आ गया। तो ये प्लस क्यू है और ये है माइनस क्यू। प्लस क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आया उसको मैंने कहा प्लस वी और माइनस क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज डेवलप हुआ उसको कहा मैंने माइनस वी। तो इस रीजन ऑफ बैरियर जो हमारा डिप्लेशन रीजन है इसके क्रॉस एक वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ती है और दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस है दैट आई कॉल वीबी यानी पोटेंशियल बैरियर। सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज दिस वन, मींस a triangle shows p type semiconductor and a vertical line shows n type semiconductor. So this is the circuit symbol of a p-n junction diode. Now we come to one more important topic, that is effect of doping concentration on the unbiased diode. Unbiased means when there is no battery connected with the diode. जब तक डायोड के साथ कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड है, जिस डायोड को फॉर्म किया या फॉर्मेशन की प्रोसेस है, तो यहां पर हम डायोड के चार इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। पहला होता है डिप्लेशन रीजन, दूसरा होता है उसका जंक्शन रेजिस्टेंस, तीसरा होता है बैरियर वोल्टेज और चौथा होता है बैरियर फील्ड। डिप्लेशन रीजन पर इफेक्ट क्या होगा? सपोज यहां से जैसे अब इसको देख लेते, जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है अराउंड द जंक्शन। दिस इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन क्रिएट्स ए बाउंड्री ऑफ चार्ज। Suppose at least 4 charge are required, 4 positive are required to stop the further diffusion. मैंने माना जब तक यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक होल का रिकॉम्बिनेशन हो गया तो यहां पर एक वीक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक वीक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये वीक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज नॉट कैपेबल ऑफ स्टॉपिंग फर्दर डिफ्यूजन, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज कर जाएंगे। अब यहां पर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव डेवलप हो गए जो यहां पर
चार्ज बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं, चार्ज बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, बट दिस नेगेटिव चार्ज ऑन पी साइड एंड positive charge on n side is no distance sufficient to stop the further diffusion of electron hole combination. तो यहां से भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाते हैं और यहां पर एक चार्ज की बाउंड्री हो जाती है. सपोज दिस बाउंड्री इज नॉट कैपेबल ऑफ स्टॉपिंग फर्दर डिफ्यूजन. अब अगर मैं डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो यहां पर मुझे एक एडिशनल कोर और मिल जाएगी. सपोज दिस इज एडिशनल कोर. अगर मैंने डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ाया, डोपिंग कंसेंट्रेशन का मतलब है जब मैं इंप्योरिटी को मिक्स कर रहा था तो इंप्योरिटी मैंने 1 ppm में मिक्स की थी, यानी 1 पार्ट पर मिलियन. 1 मिलियन एटम ऑफ टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर में एक एटम मैंने या तो पेंटावेलेंट का या फिर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का ऐड किया है, तो इसको मैं कहता हूं 1 ppm कंसेंट्रेशन. सपोज ये कंसेंट्रेशन मैंने 1 से बढ़ा के 2 ppm कर दिया है, तो यहां पर मोर चार्ज विल बी सीन इन द स्मॉलर रीजन. तो अब ये सपोज करो कि ये चार्ज सफिशिएंट है, तो यहां से लेके यहां तक ये चार्ज बाउंड्री क्रिएट हो जाती है. यहां से लेके ये चार्ज बाउंड्री है, इसको मैं कहता हूं डिप्लेशन रीजन, जिसकी विड्थ मैंने मानी है डी. अब अगर मैं और डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ाया होता तो ये चार्ज बाउंड्री और श्रिंक कर जाती और नैरो हो जाती. बट अगर सपोज करो कि मैंने डोपिंग कंसेंट्रेशन कम किया था, जहां 2 ppm का था मैंने वहां 0.5 ppm कर दिया, तो सपोज करो कि बीच के 2 यहां से गायब हो जाते हैं, लाइक ये 2 पोर्शन यहां से गायब हो जाते हैं. और मुझे पता है कि कम से कम 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव चाहिए होंगे मुझे इसको रोकने के लिए. तो 4 पॉजिटिव मेरे पास यहां तक जाके इकट्ठे हो रहे हैं, तो इतना रीजन मुझे चाहिए होगा. तो अगर मैं डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो डिप्लेशन रीजन नैरो हो जाएगा, बट अगर मैं डोपिंग कंसेंट्रेशन घटाऊंगा तो डिप्लेशन रीजन वाइड हो जाएगा. इसका मतलब हम कह सकते हैं द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वेरीज इनवर्सली विद डोपिंग कंसेंट्रेशन. अगर डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ घट जाती है, और अगर डोपिंग कंसेंट्रेशन घटाई जाती है तो विड्थ बढ़ जाती है. सो ऑन इंक्रीजिंग डोपिंग कंसेंट्रेशन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. और हमें पता है अगर मैंने डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ाई है तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन कम हुआ है. इसका मतलब जंक्शन रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डोपिंग कंसेंट्रेशन. डोपिंग कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर जंक्शन का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है. अगर डोपिंग कंसेंट्रेशन कम करते हैं तो जंक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. ये आगे इसका एग्जांपल आपको जेना डायोड में मैं दूंगा कि ऐसा कैसे हो रहा है. नाउ बैरियर वोल्टेज. बैरियर वोल्टेज क्या होता है? बैरियर वोल्टेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द डोपिंग कंसेंट्रेशन. डोपिंग कंसेंट्रेशन पे बैरियर वोल्टेज डिपेंड नहीं करता. मैंने कहा कि 4 पॉजिटिव चाहिए होते हैं, चाहे डोपिंग कंसेंट्रेशन कम हो चाहे कम हो ज्यादा हो. 4 चार्ज के बराबर पॉजिटिव चाहिए, सपोज 4 चार्ज के बराबर नेगेटिव चाहिए, तो ये कहीं से भी इकट्ठे हो इसको तो 4 चाहिए होंगे. यानी इसके लिए जो एक रिपेलिंग एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेलिंग एनर्जी है, वो क्रिएट होती है नंबर ऑफ चार्ज से. यानी बैरियर फील्ड डज नॉट डिपेंड, बैरियर वोल्टेज does not depend upon the doping concentration and remain unchanged. Now barrier field, we know that barrier field is given by, हमें पता है बैरियर फील्ड होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और यहां पर बैरियर पोटेंशियल पर यूनिट डिप्लेशन रीजन. तो ये जो EB है, EB डिसाइड होगा इस पूरे रीजन पर जो वोल्टेज था वो था VB, और ये VB वोल्टेज ड्रॉप हुआ था ओवर ए डिस्टेंस D. So that's why electric field is said to be voltage divided by width, and here VB is potential barrier, whereas D is the depletion layer, width of depletion layer. So we can say EB is directly proportional to 1 upon D. If D increases, E decreases. If D decreases, E increases. So we can say barrier field increases on increasing doping concentration, because on increasing doping concentration D was decreased. So here we can conclude that on increasing doping concentration width of depletion layer decreases, junction resistance decreases,
potential barrier remain unchanged and barrier field increases. There comes a question, which depletion region is wider, in a lightly doped diode or in a highly doped diode? The answer is lightly doped diode. Biasing is nothing but the method of connecting battery across the PN junction diode. Biasing can be done in two ways. Number one, forward biasing. In short, we will call it FB. Number two, reverse biasing. In short, we call it RB. IV characteristics. IV characteristics, the variation of current and voltage of a PN junction diode in pictorial form, or you can say the pictorial representation of variation of current and voltage of a PN junction diode is called IV characteristics. So now let us discuss about the IV characteristics of a PN junction diode in forward and reverse biasing, and also discuss the properties of reverse and forward biasing in detail now. Forward biasing of a PN junction diode. A PN junction diode is said to be forward biased if P type of the diode is connected to the positive terminal of battery and N type of the diode is connected to the negative terminal of battery as shown. This P type is connected to the positive of battery. This N type is connected to the negative of battery. Here I am taking battery of variable voltage. The voltage of the battery can be changed. So this is a variable voltage. ये arrow जो है variable voltage को दिखाता है. Suppose at some instant current I begin to flow in the circuit. So this is the forward bias. Now let us understand the modus operandi of forward bias. Here I am showing the P type and N type. This is P region and this is N region. This is N region. I am not showing this time the core. I am just simply showing the mobile majority charge on both the sides. On P side majority charge is on, so I am showing on. On N side majority charge is electron, so I am showing electron. What happens? At certain voltage V, जब हम कोई voltage V लगाते हैं, this positive charge from this side pushes the hole towards the junction, और इस positive की वजह से ये hole थोड़ा सा आगे move कर जाता है. Similarly, this negative on this side, on N side, pushes the electron towards the junction. ये junction की तरफ जाता है, but because of the potential barrier, ये जो बैरियर था यहां पर ये VB माइनस V है, तो अगर सपोज कर ले कि 5 वोल्ट का बैरियर था, 5 वोल्ट का, और मैंने 1 वोल्ट का अप्लाइड वोल्टेज लगाया, तो मेरे पास अभी 4 वोल्ट का बैरियर है. तो इसकी वजह से थोड़ा सा विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज करेगा, बट नॉट इनफ. अभी भी सर्किट में कोई करंट नहीं मिलेगा. करंट तब मिलता है जब ये कोई भी मेजॉरिटी चार्ज जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा. जब तक जंक्शन में पेनिट्रेशन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अभी तक कोई करंट नहीं है सर्किट में. करंट जीरो, अप्लाइड वोल्टेज मैंने 1 वोल्ट से बढ़ा के कर दिया 2 वोल्ट. तो अब जंक्शन के अबाउट जो इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज है वो 3 वोल्ट का रह गया. इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज 3 वोल्ट का रह गया, और बिकॉज ऑफ दिस हाई पॉजिटिव फील्ड मोर एनर्जी सप्लाइड टू द होल्स, एंड these holes further make a transition towards the junction. एक स्ट्राइड और ले लेते हैं, एक कदम और बढ़ा देते हैं जंक्शन की तरफ. सो नैरोइंग द डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन को नैरो करते चले जाते हैं. दिस वे वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन दिस वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू द बैरियर वोल्टेज, यानी बोथ द वोल्टेज बिकम्स इक्वल, देन द इफेक्टिव बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड effective barrier of the junction becomes zero. Means we can say now the charge on both the side is ready to cross the junction, क्योंकि अब जंक्शन क्रॉस करने के बिल्कुल करीब आ गया दोनों तरफ का चार्ज. So we can say the voltage at which the effective barrier across the junction becomes zero is called knee voltage or threshold voltage. यानी knee voltage is the last voltage up to which no current is seen in the across the junction.
above threshold voltage or above the voltage, current is seen across the junction because of the crossing of majority charge. जंक्शन की क्रॉसिंग हो जाती है, जंक्शन पेनिट्रेशन हो जाएगा. नाउ हम कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई की जाती है तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाया जाता है, जंक्शन विड्थ डिक्रीज करता है. इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन, दैट आई एम राइटिंग VB माइनस V, फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले वो घटती है एंड देन बिकम्स जीरो, और एक जगह जाके वो जीरो हो जाती है. सो द फॉरवर्ड वोल्टेज at which the barrier voltage becomes zero is called knee voltage or threshold voltage. अगर डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम हो रहा है तो जंक्शन रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस, तो फॉरवर्ड बायस में जंक्शन रेजिस्टेंस भी घटता है. और हम कह सकते हैं अबव नी वोल्टेज, अगर नी वोल्टेज के ऊपर का अप्लाइड वोल्टेज में यहां कर देता हूं, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा के मैं नी वोल्टेज से ऊपर ले जाता हूं, तो charge begin to diffuse across the junction, charge begin to cross the junction, majority charge carriers crosses the junction and hence a large current begin to flow. एक large current हमें दिखता है because of the collapsing of barrier. This current is of the order of milliampere. ये current milliampere के order का होता है, जो starting में just near the knee voltage rises exponentially and then becomes constant. फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है, डिप्लेशन लेयर नैरो हो जाता है, जंक्शन रेजिस्टेंस घटता है और नी वोल्टेज पे जाके डिप्लेशन लेयर जीरो हो जाता है, बैरियर वोल्टेज जीरो हो जाता है, और यू कैन से चार्ज बिगिन टू क्रॉस द जंक्शन and a current is seen in form of motion of majority charge, and this current is large as compared to semiconductor current, means this is of the order of milliamperes. Now IV characteristics in forward bias. Forward bias में IV characteristics मैंने बताया था, IV characteristics are the pictorial representation of current and voltage. तो एक तीन जंक्शन डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायस में लगाया, पॉजिटिव ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड नेगेटिव ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप. टू मेजर द करंट इन द सर्किट आई हैव कनेक्टेड a milliampere in the millimeter in the series, and to measure the voltage across the junction or across the battery I have connected a voltmeter across the battery or across the PN junction. दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं, पैरेलल में लगेगा. कनेक्शन देख लीजिएगा, पॉजिटिव ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ बैटरी, नेगेटिव ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ बैटरी, ये पैरेलल में. नाउ पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू one terminal is connected to voltmeter and other terminal is connected to p type. Other negative terminal of battery is connected to voltmeter and other terminal is connected to the negative of milliampere, and the positive of milliampere is connected to the n type of p junction diode. So these are the connection. Let us see. हमें पता है जब हमारा वोल्टेज जब तक V के यानी नी वोल्टेज से कम है तब तक मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, कोई करंट नहीं मिलेगा. बट एज द नी वोल्टेज इज रीच्ड, करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली, तेजी से राइज करता है एंड बिकम्स कांस्टेंट, और ये तेजी से राइज करके कांस्टेंट हो जाता है. तो these are the forward bias characteristics of a PN junction diode. For silicon this value is 0.6 volt. सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू 0.6 वोल्ट होती है, नी वोल्टेज 0.6 वोल्ट पे आ जाता है. चलिए यहां से एक और चीज देख लेते हैं, कैसे इसका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है. फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू मेजर द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन. लेट अस सपोज 2 पॉइंट्स A एंड B. मैंने 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए. लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. दिस पॉइंट इज C. दोनों पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर किया और ये पॉइंट जो है इनका क्रॉस पॉइंट था. हमें पता है ये है एंगल थीटा. हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. बट हियर करंट एंड वोल्टेज बोथ आर चेंजिंग. तो यहां से ये चेंज मैंने लिया, दिस चेंज आई एम कॉलिंग डेल्टा V. चेंज इन वोल्टेज इज डेल्टा V एंड हियर दिस इज द चेंज इन करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, दैट आई एम कॉलिंग डेल्टा I. तो यहां से मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस R इक्वल टू AC अपॉन BC.
and delta V upon delta I, this value is calculated in ohm. So this is all about the forward bias characteristics and forward bias in PN junction diodes. So this is all about today's class. Thank you for watching. Have a good day.